के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जैस्मिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा आज क्रिसमस और आने वाले नए साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। विजयराज मिशन ट्रस्ट द्वारा प्रार्थना कार्यक्रम। गांधी भारत देश को नई दिशा देगा, कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा। प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि बेलगावी पुलिस ने भाजपा एमएलसी सिटी रवि के फर्जी एनकाउंटर की योजना बनाई। कर्नाटका परिवहन विभाग ने 11,694 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 224.05 करोड़ रुपए का बकाया वितरित किया। कर्नाटका में एलपीजी सिलेंडर विस्फोट में भगवान अयप्पा के 9 भक्त झुलस गए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में क्रिसमस और आने वाले नए साल के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज जैस्मिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष अजीज खान द्वारा क्रिसमस के उपलक्ष्य में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर सभा प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने केक काटकर सभी को क्रिसमस और आने वाले नए साल की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कॉलेज की सलमान खान सहित कॉलेज के शिक्षक, विद्यार्थी और ईसाई समुदाय के प्रमुख आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಯಾವಾಗಲೂ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ DS ನೆಲ್ಸನ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ಒಂದು ಆಚಾರದಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ವರ್ಲ್ಡ್। क्रिसमस और आने वाले नए साल के उपलक्ष्य में विजयराज मिशन ट्रस्ट द्वारा आज शहर के केंद्रीय बस स्टैंड के सम्मुख रहे विजयनगर कॉलोनी में एक प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों में मिठाई और पोशाक वितरण किए गए। कार्यक्रम में सभी धर्म के गुरु NM राजू पॉल, हवाई मल्लिनाथ महाराज, डॉक्टर सिद्धराम बेडाल, शरणारू शिवानंद स्वामी जी, बनते धमानंद, मुफ्ती अयूब सलीम हसामी, ज्ञानी दरबार सिंह आदि मौजूद रहकर प्रार्थना करते हुए सभी को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बसवराज धन्नूर, राजकुमार चिंतामणि, अनिल कुमार चिंतामणि, डॉक्टर मोहम्मद सोहेल सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವಿಜಯರಾಜ್ ಮಿಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ, ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಿಗೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರುತ್ತಾ, ಈ ವಿಜಯರಾಜ್ ಮಿಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ವಿಜಯರಾಜ್ ಮಿಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 2012ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಂದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಅತಿಥಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಜಯರಾಜ್ ಮಿಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮೇಡಮ್, ಯಾಕಂದರೆ ಸೋಂಕಿತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವರು ಮೃತ್ಯು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅವರಿಗೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ನಮಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸೋಂಕದಿಂದ ಅದು ವಿಟಮಿನ್ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸೋದಿರ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 70 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. 70 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂತಂದರೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಬಲ ಕೊಡಲಿ, ಈ ಥರ ಬಡ ಸೇವಕರಿಗೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ನಮಗಿದೆ ರೀ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧನರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜಯರಾಜ್ ಮಿಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಧನರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲಕರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अन्य समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1924 में यहां आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर महात्मा गांधी ने उसी को नई दिशा दी है और 26 और 27 दिसंबर 2024 को गांधी भारत के रूप में मनाई जाने वाली इसकी शताब्दी एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में देश को नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि तब गांधी थे और आज खड़गे हैं। शिव कुमार ने सोमवार को यहां हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस का इतिहास देश का इतिहास है। 1924 में कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव जवाहरलाल नेहरू और गंगाधर राव देशपांडे ने महात्मा गांधी की अध्यक्षता में यहां पार्टी का अधिवेशन आयोजित किया था, जिसके भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा दिया था। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान हमने कांग्रेस के कुएं से पानी लेकर सड़कों को धोकर प्रजाध्वनि अभियान चलाया और 136 सीटें जीतने में सफल रहे। 1924 के कांग्रेस अधिवेशन का शताब्दी समारोह देश को नई दिशा और ताकत देगा। कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी एजेंडा तय करेगी और फैसला लेगी। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि बेलगावी पुलिस ने शुरू में भाजपा एमएलसी सिटी रवि को खत्म करने के लिए फर्जी मुठभेड़ की योजना बनाई थी। बागलकोट में मीडिया को संबोधित करते हुए जोशी ने लाइव कवरेज के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करने कथित योजना को विफल करने का श्रेय मीडिया को दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय पत्रकारों की सतर्कता, जिन्होंने वास्तविक समय पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई, ने स्थिति को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जोशी के अनुसार कुछ पत्रकार तो देर रात पुलिस की गाड़ियों पर चढ़कर फुटेज रिकॉर्ड करने लगे और रवि की गिरफ्तारी के बारे में लाइव अपडेट प्रसारित करने लगे। जोशी ने कहा, उनमें कामों की वजह से पुलिस की ओर से किसी भी तरह की संभावित गड़बड़ी को रोका जा सका। जोशी ने कहा, हमें मीडिया को उनके सक्रिय दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद देना चाहिए। कर्नाटक के 4 परिवहन निगमों कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी, कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम केकेआरटीसी, उत्तर पश्चिम कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम एनडब्ल्यू केएसआरटीसी और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन परिवहन निगम बीएमटीसी ने 11,694 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेजुइटी और अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए 224.05 करोड़ रुपए वितरित किए। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने केएसआरटीसी मुख्यालय में 1 जनवरी 2020 से लंबित बकाया राशि का वितरण किया। रेड्डी ने प्रतीकात्मक रूप से 3 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेजुइटी और अवकाश नकदीकरण के चेक सौंपे। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿರ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। शिव मंदिर में LPG सिलेंडर में विस्फोट होने से भगवान अयप्पा के 9 श्रद्धालु गंभीर रूप से झुलस गए हैं। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार यह घटना रविवार रात शहर के साई नगर में हुई। जब यह हादसा हुआ तब श्रद्धालु मंदिर के कमरे में सो रहे थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सभी 9 घायलों को तुरंत किम्स अस्पताल भर्ती करवाया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस को संदेह है कि श्रद्धालुओं ने खाना पकाने के बाद सिलेंडर का नाब ठीक से बंद नहीं किया था, जिसके कारण विस्फोट हुआ। श्रद्धालु केरल के सबरीमला भगवान अयप्पा मंदिर की यात्रा की योजना बना रहे थे। इन्फोसिस के सह संस्थापक एन नारायण मूर्ति ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में विफलता से बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर पलायन हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का तर्क है कि बड़े पैमाने पर पलायन की भयावह भविष्यवाणियों से ध्यान हटाकर जलवायु अनुकूल शहरों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिसमें कार्यवाही योग्य योजनाएं हों। विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि सभी प्रमुख भारतीय शहर अलग अलग स्तर की गंभीरता वाली समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भागने के लिए कोई और जगह न होने के कारण विशेषज्ञों का कहना है कि हमें इन मुद्दों से अपने शहरों में नहीं निपटना चाहिए। अवसर यही है कि समाधान भी यही होना चाहिए। नेलमंगला में हुई दुर्घटना में शामिल ट्रक के चालक ने सोमवार को दावा किया है कि उसके वाहन के आगे एक कार थी और टक्कर से बचने के लिए उसने स्टीयरिंग व्हील को सड़क के डिवाइडर की ओर मोड़ दिया, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने जांच के बारे में विवरण साझा करने से इनकार कर दिया और दावा किया कि इससे उनकी जांच प्रभावित होगी। पुलिस के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के तहत दुर्घटना स्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, एक DUSP रैंक का अधिकारी मामले की जांच कर रहा है। हम सड़क सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए केस स्टडी भी कर रहे हैं। इस स्तर पर हम कोई भी विवरण प्रकट नहीं करना चाहते हैं जिससे जांच में बाधा उत्पन्न हो। हालांकि ऐतिहासिक रूप में महिलाओं को पितृसत्ता का दंश झेलना पड़ता है, लेकिन बेंगलुरु में हाल ही में हुई 2 आत्महत्याओं, एक तकनीकी विशेषज्ञ और एक हेड पुलिस कांस्टेबल की शहरी विवाहों में पुरुषों द्वारा सामना की जाने वाली जटिलताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। दोनों मामलों में पीड़ितों ने अपनी पत्नियों और ससुराल वालों पर भावनात्मक और वित्तीय संकट पर पैदा करने का आरोप लगाते हुए विस्तृत नोट छोड़े। मामले में एक अहम सवाल भी उठते हैं, अगर पीड़ित महिलाएं होती हैं तो क्या नतीजे अलग होते हैं? जबकि कानून प्रदाताओं का कहना है कि कानूनी प्रतिक्रियाएं संभवतः वही होती हैं। पुलिस अधिकारियों का सुझाव है कि अगर भूमिकाएं उलट दी जाती तो नतीजे अधिक तत्काल और गंभीर हो सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि लिंग गतिशीलता कानूनी और सामाजिक प्रतिक्रियाओं को कैसे प्रभावित करती है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जैस्मिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा आज क्रिसमस और आने वाले नए साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। विजयराज मिशन ट्रस्ट द्वारा प्रार्थना कार्यक्रम। गांधी भारत देश को नई दिशा देगा, कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने कहा।
प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि बेलगावी पुलिस ने भाजपा एमएलसी सिटी रवि के फर्जी एनकाउंटर की योजना बनाई। कर्नाटका परिवहन विभाग ने 11,694 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 224.05 करोड़ रुपए का बकाया वितरित किया। कर्नाटका में एलपीजी सिलेंडर विस्फोट में भगवान अयप्पा के 9 भक्त झुलस गए। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।